Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. So, today we are going to have countable and uncountable nouns. तो क्यों सीखना है बेटा हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को पहचाना, पहले तो नाउन्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको उनके जो आगे लगते हैं आर्टिकल्स या पीछे लगते हैं उनके जो वर्ब्स, वो सब चेंज होंगे बेटा. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर नाउन वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल. एवरीथिंग यू नीड टू रिकॉग्नाइज. All right. So just imagine I'm keeping one. This is here, right? What's this? It's a pen. Okay. Now this is rolling. I'll keep some other pen. Yeah, this is steady. Now I'm keeping over here. Now what will you say? पहले ये पेन है, ये पेंसिल, करेक्ट. ये पेन है, ये पेंसिल. तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम इनको गिन पा रहे हैं ना बेटा, कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हम गिन पा रहे हैं ना. तो दिस इज व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन. ये पेन नाउन है ना. नो नो डाउट इन इट, करेक्ट. द पेन इज नाउन, राइट. सो what do you understand from this? What do you understand? That a countable noun has both singular and, first of all, we can count it. We can count it. Okay. Now over here, there's some sugar. Okay. There's some sugar. Now, can I count like this? मुझे एक शुगर दो, दो शुगर दो, तीन शुगर दो, ऐसे मैं काउंट कर सकती हूँ क्या बेटा? इसको बैठ के गिन सकते हैं क्या बेटा? नो. What will I say? Give me a bowl of sugar or give me a spoon of sugar or whatever, whichever you're measuring with it, you will just say like that, right? You will not say give me one sugar, two sugar, three sugar. Though that is what is uncountable. तो ये यहाँ पर आएगा. पेन यहाँ पर आएगा क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं. इसको हम नहीं गिन सकते हैं. So we cannot or can't count it. Count it. All right? Yes, we can't count it. Right. Now, as I told you, इसको पेन और पेन्स हम लिख सकते हैं. Okay. So it has singular and plural. Yes. Now over here, what I would like, what is it? Can you say sugars? You can say over here pen and pens. और over here मैंने क्लिप रखा है. क्लिप, क्लिप्स. एक क्लिप, बहुत सारे क्लिप्स, क्लिप्स. सो क्लिप्स ऐसे भी लिख सकते हैं. सो क्लिप, क्लिप्स. यहाँ पर क्या आप ऐसे लिख सकते हो? शुगर, sugars. Which is correct? Which is correct, beta? Which is correct? Of course, this one is correct, right? This one is correct. Hmm? And the other one is wrong. You cannot say sugars. Okay? Because you can add some measure words like some, little, like that you can add, but you cannot definitely say it as sugars. Okay? So it has only, क्या है? Only singular. Correct? तो हम क्या बोलेंगे उनको? कि they are always singular, or they are always single. ओके. तो मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखती हूँ. यू जस्ट टेल मी विच इज राइट. गिव मी. Wait, I will write it from here so that I'll have enough space. Okay. Give me. What can I write? Okay. Now you read the sentence. Then tell me which is right. Okay, find the mistake. Like this, for error correction and all, you will get MCQs and all lot in your
exams in your competitive exams and all. Now tell me which is correct, beta. Which is correct? Come on, tell me. Give me two packets of sugars. Give me two packet of sugars. Give me two packets of sugar. Which one is right? Of course, this one is right. This is wrong. Why? Because I told you sugar is an uncountable noun. You cannot do a plural for sugars, right? So you cannot say give me two packets of sugar. आप बोल नहीं सकते हो कि give me two packets of sugars, क्योंकि sugar जो है एक uncountable noun है बेटा। यहाँ पर देखिए गिव मी टू पैकेज, ये टू है यहाँ पर किसके लिए लगा है? ये पैकेट के लिए लगा है। टू पैकेज, क्योंकि आप पैक शुगर का पैकेज को काउंट कर सकते हो बट शुगर को, ऑयल को, अभी ये ऑयल है यहाँ बॉटल में है, तो मैं बोल सकती हूँ गिव मी अ बॉटल ऑफ ऑयल। आई कैन नॉट से गिव मी वन ऑयल, टू ऑयल, थ्री ऑयल। क्या मैं बोल सकती हूँ बेटा एक ऑयल, दो ऑयल, मुझे एक तेल दे दो, दो तेल दे दो? आपने कभी सुना है क्या ऐसा सेंटेंस? No, we can't definitely say that because we cannot count the oil. We can only measure. We can use measure words. तो इसीलिए इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। ओके, ये सेंटेंस लिख लिया तो मैं रब करूं बेटा? ओके, तो इससे अभी हम काउंट कर सकते हैं और उनके सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके आगे जब हमको बोलना है एक पेन, कोई तो एक पेन है, कोई तो एक लड़की है, कोई भी नाउन के बारे में एक जब बात करते हैं तो हम वी कैन यूज ए और एन, करेक्ट। हम ए और एन का उनके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। सो वी कैन यूज ए और एन, करेक्ट। हम बोल सकते हैं अ क्लिप, एन एप्पल, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? मगर यहाँ पर हम क्या अ शुगर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम शुगर को नहीं बोल सकते अ ऑयल। ऑल दिस इज रॉन्ग, सो वी कैन नॉट यूज ए और एन। वी कांट यूज ए और एन विद एन अनकाउंटेबल नाउन। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, कि आपको समझना है कि क्या है अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, क्यों जानना है। ये आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स जो है, तो आपको समझ में आएगा कि ए कहाँ लगाना है, अर्न एन कहाँ लगाना है। क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर नाउन प्रॉपरली, ओनली देन यू कैन recognize where to write a or okay. Let's proceed. Have you copied it down? If you want to, this is a very, very easy way to just note down these three things. You should basically know it. मगर कोई कोई नाउन्स है ना बेटा, दोनों काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, तो हम वो भी जानेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन जस्ट शुगर, ऑयल, सॉल्ट, ऐसे बहुत चीज, मीट, ये बहुत सारी चीजें होते हैं, वो हम एक्टिविटी के द्वारा देख के फिर हम आएंगे कि कोई कोई है ना बहुत अनकाउंटेबल और काउंटेबल भी रहते हैं, वो क्या है हम देखें। आपने लिख लिया होगा मैं उम्मीद करती हूँ, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देखेंगे अभी एक्टिविटी। अभी आप बताइए मुझे, बॉल इज अकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल? यहाँ पर एंड दोनों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल के लिए लगेगा, अनकाउंटेबल के लिए एन लगेगा, इसीलिए ऐसा लिखा है। आपको बस यहाँ पर बोलना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो बेटा जब भी आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल देखना है, तो आप तुरंत क्या करो, आपके मन में एक चित्र बना लीजिए कि मुझे है ना बॉल, एक बॉल, एक बॉल मैं बोल सकती हूँ उसको बॉल्स। ऐसे में दो तीन बॉल है, यानी कि उसका बहुवचन हो पा रहा है, यानी उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो पा रहा है। यहाँ पर एक एस ऐड कर सकती हूँ, करेक्ट। तो बॉल्स हो जाएगा, तो बहुत सारे बॉल्स हैं यहाँ पर। तो मैं इसका, हमने क्या पढ़ा था बोर्ड पे लिख के कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है एंड वी कैन काउंट देम। सो एंड वी कैन ऐड अ और एंड आई कैन से ओवर हियर अ बॉल। एस नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे जब आप अ लिखोगे तो। ओके, अ बॉल,
Okay, a ball is a countable noun. Understood? So this is what is your answer, which is countable, right? Okay. I hope it is clear. Yes. So let me take the answer. Again, we will go to the next question. Horse is a or an uncountable or countable noun. Horse is a countable or uncountable. हम घोड़े को गिन सकते हैं, हॉर्सेस लिख सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं उसका, और अ हॉर्स भी बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हम उनको गिन भी सकते हैं, इसीलिए वे एक काउंटेबल नाउन। अगला राइस। अभी राइस, राइस को उसका प्लूरल बनते हुए सुना है क्या आपने कभी? हैव यू हर्ड अ स्पेलिंग ऑफ लाइक दिस? राइसेस, सॉरी, ये ई है, ऐसे सुना है क्या आपने? सी ई एस। This is a wrong way, right? There is no word called rices like this, right? This is wrong. So इसके प्लूरल नहीं होते हैं, and you cannot say a rice. एक एक राइस ग्रेन गिन के दोगे क्या मुझे? गिव मी सम राइस बोलोगे आप, मेशर वर्ड्स यूज करोगे। आई हैड वेरी लिटिल, आई हैड लिटिल राइस, I had plenty of rice. So you'll use measure words like that. All right. So you cannot say it as rices and all that. So it is an uncountable noun. Perfect, perfect. So rice we can't count. So it is an uncountable. अगला देखेंगे। गर्ल इज अ डैश। गर्ल क्या है बेटा? गर्ल हम काउंट कर सकते हैं, जरूर काउंट कर सकते हैं। उधर एक लड़कियां है, दो लड़कियां है, तीन लड़कियां हैं। गर्ल्स करके एस डाल सकते हैं, हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। सो इट इज काउंटेबल। वाटर, हम क्या बोल सकते हैं? गिव मी वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर। उनके आगे नंबर्स नहीं लगा सकते हैं, उनके आगे एस नहीं लगा सकते हैं, वाटर्स नहीं बोल सकते हैं। और क्या है, उनको गिन नहीं सकते ना बेटा। आप एक ग्लास ऑफ वाटर को गिन सकते हैं, देयर आर 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। ग्लास को आप काउंट कर सकते हो, मगर पानी को नहीं काउंट कर सकते बेटा। ओके, गिव मी सम वाटर बोल सकते हो। ओके, देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन माय वाटर बॉटल। ओके बेटा, सो इट इज एन अनकाउंटेबल। राइट। सो नेक्स्ट, you can see your answers. If you have marked it right, we can go to the next. Ball is a countable noun. Horse is a countable noun. Rice is an uncountable noun. Girl is a countable. Water is uncountable. Right, perfect. Now we shall do one more activity and then I hope we'll come on the board with, right? Opinions. आपके हिसाब से opinion क्या है? बताइए, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? राइट, आप लिखो, फिर मैं वेट करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओपिनियंस, तो बेटा ओपिनियन जो है दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है। ओके, आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड एंड शो यू व्हेन इट इज काउंटेबल, व्हेन इट इज नॉट काउंटेबल। बट ओवर हियर कैन यू सी वन एस ओवर हियर? ओपिनियंस, एस है, प्लूरल बना है, तो यहाँ पर मैं काउंटेबल की बात ही कर रही हूँ कि बिकॉज आई फाउंड वन एस ओवर हियर। opinions. Okay. For example, I have several opinions on the on this matter, not just one. मेरे पास बहुत सारी राय है इस प्रोजेक्ट पर या इस विषय पर, एक सिर्फ नहीं। तो मैं एक इंसान की राय जो है, उनको उनके पास बहुत सारी राय है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या मैटर के लिए। ओके बेटा, तो ऐसे है ना, कभी कभी अकाउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। दूसरा, आप जब या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव योर ओपिनियन ऑन दिस, कुड आई हैव योर ओपिनियन ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मैं वो एक इंसान की बात कर रही हूँ, उसका ओपिनियन मांग रही हूँ। ओके, अगर अनकाउंटेबल में बताना है, द गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, तो ये एक जनरल ऐसे है, तो इसी के लिए ये कलेक्टिव व्यूज है। जब आपको कलेक्टिव व्यूज मिलते हैं तो वो अनकाउंटेबल होगा।
मगर यहाँ पर एस लिखा है तो यहाँ पर मैं काउंटेबल लिखूं। ओके। मनी, मनी जो है हम काउंट कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे जरूर मैम, मैं रोज एक पैसे मैं गिनता हूँ रुपीस को। मगर आप यूनिट्स को गिन सकते हो, यानी कि यू कैन काउंट द रुपीज और डॉलर्स, बट यू कैन नॉट से मुझे एक, गिव मी वन मनी, टू मनी, थ्री मनी, फोर मनी। कैन यू से लाइक दैट? नो, यू कैन डेफिनेटली नॉट से लाइक दैट, गिव मी वन मनीस। कभी सुना है क्या गिव मी सम मनीस? मनीस प्लूरल होता है क्या? नहीं होता है बेटा। तो इसीलिए दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एंड आईलैंड, आईलैंड काउंट कर सकते हैं हम, बराबर ना? आईलैंड वी कैन काउंट, सो इट्स अ काउंटेबल। न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ पर ही आपने देखा, यहाँ पर एक एस लगा हुआ है, न्यूज़पेपर। क्योंकि सिंगुलर जो है न्यूज़पेपर होता है, प्लूरल जो है न्यूज़पेपर। मगर यहाँ पर देखिए न्यूज में एस है तो वो प्लूरल नहीं है बेटा। ओके। न्यूज में जो एस है वो प्लूरल नहीं है। वो न्यूज को हम स्पेलिंग ही न्यूज ही बोलते हैं, न्यू करके नहीं बोलते हैं, राइट? सो न्यूज पेपर्स, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। ओके। पेपर भी बहुत अनकाउंटेबल और काउंटेबल हो सकता है। पेपर भी, मैं वो भी आपको लिख के बताऊंगी। न्यूज, न्यूज, न्यूज नहीं पढ़ने का, इसको न्यूज ऐसे पढ़ने का। तो न्यूज क्या है बेटा, काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? ओके। न्यूज जो है अनकाउंटेबल है, क्योंकि आपने ऐसे यहाँ पर देखे, हम गिन सकते हैं ऐसा नहीं बोलने का, क्योंकि न्यूज जो है इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। एक न्यूज, दो न्यूज ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? ओके, अब ये ट्रिकी है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, गिव मी वन इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं बोल सकते। गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज वर्ड्स लाइक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो you will say this as what? Uncountable noun. Okay, you will not say it as countable, because हम इंफॉर्मेशन को बैठ के गिन नहीं सकते, उसने एक इंफॉर्मेशन दिया, दो इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज एन uncountable noun. Give me a piece of information, you can say like that. ब्रेड, ब्रेड जो है हम उसके लोव्स को गिन सकते हैं, उन्हीं की, उनके जो ब्रेड का पीसेस को लोव्स बोलते हैं। तो लोव्स को गिन सकते हैं, ब्रेड को हम ये इनको अनकाउंटेबली नाउन ही कहेंगे। गिव मी वन ब्रेड, टू ब्रेड्स। ब्रेड का प्लूरल नहीं होता बेटा, इसीलिए वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। सैंड, सैंड्स नहीं बोलते हैं हम, सैंड ही बोलते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका बहुवचन नहीं है, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके बेटा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, केक, केक जो है हम गिन सकते हैं, एक केक, दो केक, मैंने मेरे बर्थडे के लिए चार केक काटे थे। केक्स भी हम बोल सकते हैं, एस हम डाल सकते हैं, इसको प्लूरल बना सकते हैं। सो हम गिन सकते हैं, इसे काउंटेबल नाउ। कोको कोला, हम गिन सकते हैं कोको कोला। हम बॉटल्स को गिन सकते हैं, कोको कोला को नहीं गिन सकते हैं। सो इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर बॉटल लिखा होता तो आप लिख सकते हो यहाँ पर काउंटेबल, हम कोको कोलास नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए इट्स एन अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ओपिनियंस, मनी, आइलैंड, न्यूज़पेपर काउंटेबल, न्यूज अनकाउंटेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सैंड अनकाउंटेबल, केक काउंटेबल, एंड कोको कोला अनकाउंटेबल. All right, so we'll come back to the board and see some words which you can add to the uncountable words. Okay, beta? Right. Then we shall move on to the MCQ. Right. So we see, for example, time. If you consider time, I have seen the movie 10 times. When I say like that, in front of times, I'm able to add a time, uh,
I'm able to write a number, then you will say this as a countable noun. Okay. When I say it was a waste of time, it was a waste of time. Then what is it? I'm just saying I can't count this time over here. I'm just saying it was a waste of time. यहीं पर ही लिख देती हूँ. तो it is an uncountable. तो टाइम, पेपर, ये सारी चीजें जो है बहुत अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों ही रह सकते हैं. ओके बेटा, यू अंडरस्टूड? यस, आई होप यू इट्स क्लियर. डू यू वांट मी टू गिव सम मोर एग्जांपल्स? यस. फॉर एग्जांपल पेपर. नाउ you can say she published 3 research papers. 3 research papers last year. तो यहाँ पर पेपर्स लगाया एस. तो यहाँ पर मैं वो रिसर्च पेपर्स को काउंट कर रही हूँ कि उन्होंने 3 रिसर्च पेपर्स उन्होंने सबमिट किया है. तो यहाँ पर ये काउंटेबल होगा बेटा. नाउ इफ आई से फॉर एग्जाम्पल आई नीड some paper to write a note. Now here I use the word measure words some because I'm just not counting them. I'm just saying I need some paper to write the thing. So over here it is uncountable. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं. हमको सिर्फ उनका सेंटेंस को पढ़ के समझना है कि वहां पर वो क्या बताना चाह रहे हैं. वहां पर सिंगुलर में लिखा है, प्लूरल में लिखा है, या व्हाट इज इट, इन विच कॉन्टेक्स्ट दे आर टेलिंग, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई कि वो सिंगल अनकाउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है. ये सारा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब बहुत काम आएगा. तो कैसे, हाउ टू काउंट, हाउ टू काउंट अ पेपर, यानी कि क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज लाइक अ शीट ऑफ पेपर, अ शीट, अ पीस ऑफ पेपर. और क्या यूज कर सकते हैं? अ रीम ऑफ पेपर. ओके. सो व्हाट कैन यू यूज? यू कैन यूज अ शीट, अ पीस और अ रीम ऑफ पेपर. इज इट क्लियर बच्चों? यस. I hope it is clear. So over here you can see I've used a sheet of paper. I mean उसके आगे जो है यहाँ पर सम लगाया. ये जो है मेजर वर्ड्स है, उसके बदले आप शीट भी लगा सकते हो, रीम भी लगा सकते हो, अ पीस भी लगा सकते हो पेपर के आगे. ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर. ओके, नाउ हमारा समय भी हो गया है तो लेट्स गो टू एमसीक्यू. यहाँ पर हम देखेंगे आपका पहला सवाल. Which of the following is a countable noun? Which of the following is a countable noun? Milk, water, paper, sugar. Milk, water, paper, sugar. Which of the following is a countable noun? Which one is an uncountable noun? आपको just number 2 लिख के uncountable का ये कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी में से कौन सा है लिखना है. ए बनाना, बी ब्रेड, सी पेंसिल, डी बुक. A banana, B bread, C pencil, D book. Choose the countable noun from the sentence. Now there's a sentence over here. You have to choose the countable noun. Okay. She bought 2 oranges and some juice. A juice,
B. She. C. Oranges. D. Some. So you have to choose the countable noun. Be careful, there are two nouns in this sentence. So please see properly which is a countable noun, which is an uncountable noun, or how do you want to identify. Please be careful. Cannot count. We cannot count. Which of the following can we not count? A. Chairs. B. Pens. C. Rice. D. Dogs. We cannot count. Chairs, pens, rice, dogs. हो गया? Which of these is both countable and uncountable depending on the context? तो आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताब से आपको कौन सा जो है काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है बेटा. ए चीज. बी टाइम. सी पेपर. डी टाइम एयर. A cheese. B time. C paper. D air. Okay. Which sentence is correct? I have many milk. I have three waters. I need some flour. I need few sugar. Which sentence is correct? I have many milk. I have three waters. I need some flour. I need few sugar. Select the uncountable noun. A. Eggs. B. Chairs. C. Water. D. Apples. Select the uncountable noun. A. Eggs. B. Chairs. C. Water. D. Apples. What is the plural form of countable noun child? यानी कि यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन चाइल्ड है, उसका प्लूरल फॉर्म पूछा जा रहा है. दे आर नॉट आस्किंग यू ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन चाइल्ड. ए चाइल्ड्स. बी चाइल्ड्स. सी चिल्ड्रन. डी चिल्ड्रंस. इनमें से कौन सा है बेटा? Childs, childless, children, children's. Which of these can we count? A. Tea. B. Money. C. Tables. D. Oil. इनमें से किसको हम गिन सकते हैं बेटा? Which of these can we count? A. Tea. B. Money. C. Tables. D. Oil. Last one. Which sentence uses an uncountable noun correctly? I ate two rices. He bought a furniture. C option. She gave some advice. She gave me some advice. We have five waters. Which sentence uses an uncountable noun correctly? I ate two rices. We bought a furniture. She gave me some piece of advice. We have five waters. All right, so let's go to the answers. I hope you all would have answered it correctly. So please note down your answers. Which of the following is a countable noun? यहाँ पर हम मिल्क को, वाटर को, शुगर का प्लूरल्स नहीं होता है और उनको हम गिन नहीं सकते हैं. उनको मेजर वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, सम, लिटिल. ओके, वैसे तो एप्पल ही करेक्ट आंसर है. विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन? यहाँ पर हम बनाना को काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट कर सकते हैं, मगर ब्रेड को नहीं काउंट कर सकते हैं. तो ब्रेड इज द राइट ऑप्शन. Choose the countable noun from the sentence. She bought two oranges and some juices. एक juices. यहाँ पर oranges है तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर oranges और juices दोनों ही है, मगर यहाँ जूस जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है. और यहाँ पर सवाल क्या पूछे? काउंटेबल नाउन. इसीलिए यहाँ पर टू ऑरेंजेस ही करेक्ट है. तो यानी ऑरेंजेस ही काउंटेबल नाउन है, जूस जो है अनकाउंटेबल है. वी कैन नॉट काउंट. हम राइस को गिन नहीं सकते हैं, चेयर्स को, पेन्स को, डॉग, सबको एस एस लगा हुआ है देखिए, सबका प्लूरल फॉर्म है. राइस को प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए राइस अनकाउंटेबल नाउन है. विच ऑफ दीज इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? पेपर एंड टाइम. कभी कभी समय भी आपको क्या है
दोनों ही समय और पेपर, दोनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोर्ड पे भी आपको लिख के बताया था, इट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। Which sentence is correct? I have many milk. I have three waters. I need some flour. I need। तो यहाँ पर बेटा many milk के आगे ही many नहीं बोल सकते हो, और यहाँ पर जो काउंटेबल है उनके आगे ही many लगा सकते हो। ओके। आई हैव थ्री वाटर्स यानी कि आप नहीं बोल सकते हो मुझे तीन पानी है। और यहाँ पर सम फ्लावर यानी कि थोड़े बहुत, थोड़ा बहुत आटा दे दो, हम बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये जो फ्यू मैनी, ये जो सारे जो मेशर वर्ड्स हैं वो काउंटेबल के साथ लगता है, अनकाउंटेबल के नहीं। वो भी हम आपको अगली कक्षा या आने वाले कक्षा में पढ़ाएंगे, कब आपको मैनी लगाना है, फ्यू लगाना है, सम, ओ डिटेल में हम आपको समझाएंगे। सो आई नीड सम फ्लावर। Select the uncountable noun. Water. See, water is the right answer. What is the plural form? Children है बेटा, children's नहीं लिखने का, क्योंकि child जो है singular है, children जो है plural है। So children is the right answer. C option is right. Which of these can we count? हम tables को गिन सकते हैं, यानी कि money को, tea को, oil को, it's an uncountable noun, हम गिन नहीं सकते हैं। So last one, which of these sentence is an uncountable noun correctly? तो यहाँ पर advice जो है is an uncountable noun, उसके आगे ये जो मेशर वर्ड्स है सम लगाया गया है। फर्नीचर जो है इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल के आगे या कोई भी नंबर नहीं लगता है। यहाँ पर भी राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर टू लगाया है जो कि नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर भी वाटर्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे फाइव लगा है जो कि नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। She gave me some advice is the right usage of uncountable noun. Yes, so we are done with our session. I hope you all have enjoyed the session. So आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक सर, थैंक यू सर।